السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی بھارتی تسلط اور ظلم و جبر سے نجات دے۔ سب سے پہلے خبر مریم نواز کی پیشی کی تو لاہور احتساب عدالت میں مریم نواز کی پیشی کے لیے کارکنوں کی فوج کے ساتھ آمد۔ نون لیگی کارکنوں کی عدالت کے سامنے ہلڑ بازی اور پتھراؤ، رکاوٹیں توڑ کر عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ لاہور ملتان روڈ پولیس اور نون لیگی کارکنوں کی لڑائی میں میدان جنگ بن گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما مریم نواز کی 200 کنال اراضی کی غیر قانونی طور پر الاٹمنٹ کیس میں نیب آفس پیشی۔ مریم نواز کی نیب لاہور آفس پیشی پر لیگی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد متحرک نظر آئی۔ رائیونڈ سے بڑے قافلے کی صورت میں نیب آفس آمد پر کارکنان پرجوش دکھائی دیے۔ پیشی کے موقع پر لاہور کا ٹھوکر نیاز بیگ میدان جنگ بن گیا۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بڑی تعداد نے پولیس کی جانب سے لگائے گئے بیریئرز ہٹا کر اندر گھسنے کی کوشش کی، جس پر پولیس کی جانب سے مزاحمت کرنے پر ملتان روڈ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ صورتحال کشیدہ ہونے کے باعث نیب لاہور کی جانب سے پیشی منسوخ کر دی گئی۔ مریم نواز نیب آفس پہنچ کر گھر واپس نکلی، مگر کچھ دیر بعد نیب آفس کے باہر آ کر کھڑی ہوئی تو کم و بیش 45 منٹ نیب آفس کے باہر موجود رہی اور موقف اپنایا کہ جھوٹے الزامات کا جواب دینے آئی ہوں، مجھے سنا جائے، جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نیب نے گیٹ بند کر لیا، جواب دینے آئی ہوں، دروازہ کھولیں۔ آج یہاں پیش ہوئی ہوں اور اپنے یہاں کھڑی ہوں، یہ دروازہ نہیں کھولتا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں، مجھے یہ میسیجز مل رہے ہیں نیب کی جانب سے کہ آپ واپس جائیں۔ میں یہاں کھڑی ہوں، آج اگر جھوٹے الزاموں میں مجھے بلایا ہے تو میرے جواب سنو۔ میں یہاں کھڑی ہوں، دروازہ کھولو، میرے جواب سنو، اور اب سوال کیا ہے تو جواب سننے کا حوصلہ رکھو۔ بعد ازیں نیب کی جانب سے پولیس افسران کے ہاتھوں لیگی قائدین کی منشا پر تحریری طور پر پیشی منسوخ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی، جس پر مریم نواز کا قافلہ نیب آفس سے واپس روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب نیب کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ایک آئینی و قومی ادارے کے ساتھ اس نوعیت کا برتاؤ ہوا، جس میں نیب کی عمارت پر پتھراؤ کرتے ہوئے کھڑکیوں کے شیشے تک توڑ دیے گئے، نیب کے عملے کو بھی زخمی کیا گیا۔ ان حالات میں نیب کی جانب سے مریم نواز کی پیشی کو فوری طور پر منسوخ کیا جاتا ہے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز لاہور۔ مریم نواز کی پیشی پر پتھراؤ کئی سوال چھوڑ گیا۔ نواز شریف کی بیٹی کی عدالت میں پیشی پر پتھراؤ کیا گیا، گاڑیوں میں پتھر کون لایا؟ مریم نواز کی عدالت پہنچنے پر پتھراؤ کیوں اور کس نے کیا؟ مریم کی آمد پر شدید پتھراؤ، پتھروں بھری گاڑی کون لایا؟ پتھر بانٹے اور پھینکے گئے۔ مریم نواز کی نیب دفتر آمد پر شدید پتھراؤ کیا گیا۔ ایک کالی ڈبل کیبن کی گاڑی مریم نواز کے قافلے میں آئی، جس میں سے لال رنگ کی شرٹ پہنے ایک شخص نے پتھروں سے بھری تھیلی نکالی اور اس سے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، جس سے نیب عدالت کے شیشے بھی ٹوٹے۔ پتھراؤ کے دوران مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ بھی پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا، جس کے بعد مریم نے جاتی عمرہ کی جانب واپسی کی راہ لی۔ نون لیگی رہنما دوبارہ نیب دفتر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن دفتر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مریم نواز کو خاتون کارکن سے ملتے ہوئے بھی پتھر پکڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگی رہنما مریم نواز شریف نے حکومت مخالف تحریک کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بولی، ہمارا بیانیہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، لیڈر صرف نواز شریف اور ووٹ کو عزت دو۔ یہ ہماری پارٹی کا بیانیہ نہیں بلکہ یہ ہمارے آئین کا بیانیہ بھی ہے۔ آج ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو حکومت 6 ماہ کی مہلت پر چل رہی ہو وہ کیا حالات میں بہتری لائے گی۔ عمران خان کو آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز شدید غصے میں نظر آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیانیے میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ پارٹی کا ایک ہی بیانیہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے آج مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ انہوں نے عمران خان کا ایک پرانا بیان بتا کر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
बताएं मुझे ज़रा, नवाज शरीफ के दौर में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिजली, गैस क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं? आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मरियम नवाज ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी नाकाम करार दे दिया। उनका कहना था कि मुल्क के दोस्त नाराज हुए, कश्मीर भारत की झोली में जा गिरा। अगर मियां साहब भी 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते तो पाकिस्तान एटमी ताकत न बनता। सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे और मईशत पे आपका फेलियर नहीं है, आपका फेलियर फॉरेन पॉलिसी पे भी है। 72 साल में कभी किसी के दौर में, किसी वजीर आजम के दौर में, किसी डिक्टेटर के दौर में कश्मीर की भारत को क्या इतनी जुर्रत हुई कि कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म कर सके? मरियम नवाज शरीफ ने नैब की जानब से उन पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की और बताया कि हमला उनकी जानब से नहीं बल्कि उन पर किया गया। पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि नैब का किरदार बहुत घिनौना है, मुझे जलसों से रोकने और सियासी जिद्दोजहद से बाज रखने के लिए हिरासत में लिया जाता रहा। कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि जो हुकूमत 6 माह की मोहलत पर चल रही हो वो क्या हालात में बेहतरी लाएगी। मरियम नवाज ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमें जिंदा लीडर चाहिए, मुर्दा नहीं। नवाज शरीफ यहाँ बदतरीन सूरत हाल से 2-4 थे, वो वहाँ इलाज के लिए मौजूद हैं, जल्द वापस आएंगे और जिद्दोजहद को दोबारा शुरू करेंगे। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई से सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताजा हो गई। 10 लाख देकर कारकुनान को इकट्ठा किया गया। मरियम नवाज ने नून लीग की सियासत दफन कर दी। बेगम सफदर अवान ने अपने चचा और कजन की सियासत पर खुदकुश हमला किया। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत का मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं आज के वाक़े से वाज़ेह हो गया कि नून लीग करप्ट लोगों को बचाने के लिए हर हद पार कर सकती है। आज उन्होंने नून लीग की सियासत का कि जो इस वक्त नून लीग उनके चचा और उनके कजन जो है वो बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर जो है वो काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की क़यादत में, आज उस नून लीग की सियासत का भी जो बकिया रह गया था जनाजा वो भी उन्होंने आज निकाल दिया। मुश्किल से 200 बंदा पूरे पंजाब से इकट्ठा करके 10 लाख रुपए इन्होंने तकसीम किया। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की आज एक दफा फिर तारीख दोहराई है। आज उसने अदालत की तरफ से दी हुई कंसेशन जो है उसको मिसयूज किया है। जबकि रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ लाहौर में कारकुनों पर तशद्दुद की मुज़म्मत करते हुए बोले कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज हमेशा अदालतों में पेश होते रहे हैं। आज हमारे वर्कर्स के साथ जो रवैया रवा रखा गया ये सियासी माहौल खराब करने की कोशिश है। कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई ना रोकी गई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और नाअहली सबके सामने है। गाड़ियां डैमेज की गई, मरियम नवाज साहबा के गाड़ी का विंडशील्ड जो है टूट गया, पथराव किया गया। एहतसाब के अमल का जो है हमारे लीडर ने, नवाज शरीफ ने भी सामना किया है, अपोजिशन लीडर कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने जिस तरह आज सिचुएशन को वहां पे डिटेरिएट किया है, ज्यादती की गई है हमारे वर्कर्स के साथ, कि उसकी इंतहा कर दी। ये सियासत को बदनाम करती है। पंजाब हुकूमत की जो इनकॉम्पिटेंस है, इस सूरत हाल में पार्टी की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं कि कारकुनों के साथ जो वहां पे किया गया, और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ऑपोजिशन मुल्क को दोबारा लूटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, उनको कटहरे मिलाएंगे। उनका कहना था कि मरियम नवाज से सवाल पूछा जाता है तो वो बारात लेकर आ जाती हैं। ये वो लोग हैं जिनके हम सब मुतासरीन हैं। आज बुलाया गया है मरियम नवाज को कि वो उन सवालात का जवाब दे कि उसने वो 1100 जो जमीन है, कनाल जमीन, वो कैसे ली। पिछले 4 साल से हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब देने के बजाय वो एक पूरी बारात लेके आ जाती हैं नैब की पेशी के लिए, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। ये वही लीडर है ना जो कि कहते थे कि पाकिस्तान तो छोड़ो, इंग्लैंड तो छोड़ो, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जमीन नहीं है।
काम शुरू होता है तो फिर इस तरह से जो अफसरान वो लगाते हैं वो भी वो अपनी उसी मर्जी के लगाते हैं, वही जो कि इनके साथ ताउन करें। इसलिए तो हम कहते हैं कि इन्होंने अदारों को तबाह कर दिया। मरीम नवाज की नैब ऑफिस लाहौर में पेशी पर हंगामा आराई ने मियां नवाज शरीफ को फिक्रमंद कर दिया। फोन पर बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने वाक़े को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने फोन पर खैरियत पूछी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके मजम्मत की। मरीम नवाज ने वालिद को पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत और नैब पर जमकर तनकीद की। कहा, इमरान न्याजी की पॉलिसी सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। कारकुनान पर शैलिंग, पथराव और मरीम बेटी की गाड़ी पर हमले में नैब न्याजी गठजोड़ मुलव्वस है। मौलाना फजल रहमान ने भी मरीम नवाज को फोन करके खैरियत पूछी। हुकूमत पर तनकीद करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। अपोजिशन यकसू न हो सकी, इसलिए खमियाजा भुगत रहे हैं। शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम यही कहते हैं कि ये नैब ये इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ये एहतसाब के लिए बनाया गया इदारा नहीं है। हुकूमत इस इदारे के जरिए से अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लीगी कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद काबिल मुसम्मत है। उन्होंने पुलिस की जानब से शैलिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी शदीद मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जितनी महारत से नैब कोर्ट के सामने ताकत का मुजाहिरा किया, उतनी ही खूबी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को भी मोबाइल फोन पर हिदायत देती रहीं। किस सहाफी को जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना, हिदायत मरियम औरंगजेब से लेती रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो जलसे का रूप धार गई। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने खिताब शुरू किया। कारकुन उनकी शोला बयानी का जवाब जोशीले नारों से देते रहे। और फिर जब खिताब खत्म हुआ तो साफियों को सवालात की इजाजत मिली, जिसके बाद मरियम नवाज ने अपनी मर्जी के साफियों के सवालात लिए। इस दौरान मरियम नवाज सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब से बार बार कहती दिखाई दी कि बताएं और किस किस के सवाल को जवाब दें। इब्राहिम साहब बात करें, इब्राहिम साहब बात करें। एक मिनट, ऐसे नहीं ले सकता। मरियम नवाज ने बाद साफियों के सवालों को मजाक भी उड़ाया। उनका कहना था कि आप ये कह रही हैं कि मैं खुद पत्थर लाई, कारकुनों को पुलिस की वर्दियां पहनाई और फिर उन्हें कहा कि मुझ पर पथराव करें। आपने पूछा, एक सेकंड प्लीज, इंटरप्शन ना कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े। मरियम नवाज ने बाद साफियों के सवालात का मजाक भी उड़ाया। उनका कहना था कि आप ये कह रही हैं कि मैं खुद दिखाई दें कि बताएं और किस किस के सवाल का जवाब दूं। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा ने कहा है कि बीमारी के बावजूद सदर आसिफ अली जरदारी को नैब ने 17 अगस्त को जबरदस्ती पेश होने का कहा है। जियाले साबिक सदर के हमरा नैब ऑफिस जाएंगे। बीमारी के बावजूद नैब रावलपिंडी ने 17 अगस्त को प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को रावलपिंडी में कॉल की है और सिंध के जियालों की यह ख्वाहिश है कि अगर नैब ने 17 अगस्त को जरदारी साहब को पिंडी में कॉल किया है तो सिंध के लाखों जियालों की यह ख्वाहिश है कि वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बजरिया सड़क रावलपिंडी की अदालत में जाएंगे और कराची से पिंडी तक एक जरदारी सब पे भारी की गूंज में धमाल डालते हुए हम रावलपिंडी की अदालत पहुंचेंगे और एक बार फिर जियाले एक्सपोज करेंगे कि नैब सियासी इंतकाम का इदारा है। इसलिए नैब ने अगर ये सियासी इंतकाम खत्म नहीं किया तो इंशाल्लाह अगर वो जिद पे है तो जियाले भी अपने कायद के साथ कराची से पिंडी तक रावलपिंडी नैब एहतसाब की अदालत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और ये हम ख्वाहिश रखते हैं। इसलिए अगर नैब ने ये इंतकाम बंद नहीं किया तो जियालों का रास्ता भी कोई नहीं रोक सकेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वजारत खारजा के साबिक अफसर तुफैल काजी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने सिफारत खाने में बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाया।
नैब रावलपिंडी ने कार्रवाई करते हुए वजारत खारजा के साबिक ऑफिसर तुफैल काजी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तुफैल काजी बल्गारिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात रहा। नैब के मुताबिक मुलजिम ने सफारत खाने में बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाया। मुलजिम 2013 से 2018 तक सोफिया बल्गारिया में तैनात रहा। मुलजिम ने सरकारी फंड का जाती इस्तेमाल करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। नैब रावलपिंडी को यह केस वजारत खारजा की जानिब से भेजा गया था। इरफान नईम मंगी का कहना है कि नैब की तमाम अफसरान केसेस को मेरिट पर हल करेंगे और नैब करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मेगा केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने की इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सीईओ मुनस अलवी का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म देते हुए कहा कि की इलेक्ट्रिक का ऑडिट भी किया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए कि कराची में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। आपके साथ लंदन में क्या हुआ? वहां तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन दबोचकर पैसे लिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत की। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुनस अलवी और चेयरमैन नेपरा अदालत में पेश हुए। वकील के इलेक्ट्रिक आबिद जुबैरी ने कहा कि लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। चीफ जस्टिस ने कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की? क्या आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है? आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिजली बंद नहीं होगी, अगर होगी तो के इलेक्ट्रिक के घरों और दफातर की होगी। मैं अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करता हूँ। चेयरमैन नेपरा बताया कि इसका मुतबादिल क्या है? आप लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखे हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने बताया कि हमने 10 साल में 2.5 अरब इन्वेस्टमेंट किए और 1000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सीईओ मुनस अलवी की सरजनिश करते हुए कहा कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करना। मालूम है जब छोटे छोटे घरों में रात में बिजली बंद होती है तो क्या होता है? औरतें दुहाई देती हैं। आप लोगों को तमाम वसूलियां कराची वालों से कर ली गई हैं। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए, पता चले क्या कमाया, क्या हासिल किया। सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम एसीएल में डाला जाए। जहां जहां गफलत है मुकदमा दर्ज किए जाएं। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। आपके साथ लंदन में क्या हुआ? वहां तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन दबोचकर पैसे लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को शहर भर से बिल बोर्ड फौरी हटाने और इश्तिहारात की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तनसीब से मुतालिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि हमने अब तक शहर भर से 300 से ज्यादा साइन बोर्ड्स हटा दिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। टीवी पर इश्तिहार चलता है, काफी है। अदालत ने इश्तिहारात की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को निजी प्रॉपर्टीज से भी फौरी इश्तिहार हटाने का हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी कंप्लायंस होगी और पूरे शहर में हमने तकरीबन 400-500 से ज्यादा बिल बोर्ड हटाए हैं। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भी बिल बोर्ड हटाए जाने के अहकामात दिए थे, लेकिन मुतल्लिका इदारों ने कुछ रोज कार्रवाई के बाद एक्शन रोक दिया था। यही वजह है कि शहर में लगे बड़े बड़े बिल बोर्ड हवाओं और बारिश के दौरान गिरकर इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हालिया बारिशों के दौरान मेट्रोपोल होटल चौरंगी पर गिरने वाला बिल बोर्ड का हादसा है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान से भी जवाब मांगा गया है। चिड़ियाघर में जानवर मर गए, जरताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड भी जवाब दे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत केस में अदालत ने जरताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली नाहिद दुरानी समेत वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस भेजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शोकास नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नाहिद
ईरानी कहती हैं, मैं वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, ताहम काबीना अरकान का कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि काबीना ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी दी थी, लिहाजा जिम्मेदार वो भी है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रैटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज की फॉर्मेशन की पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। आर्मी चीफ की कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन पर तारीफ की गई। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 234वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क से कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया की मदद पर इजहार इत्मीनान किया गया। आर्मी चीफ की कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाने की हदायत। मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। आर्मी चीफ ने सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब पर फौरी रद्द अमल पर भी तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडरों को मुहर्रम में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी इक़दामात करने की भी हदायत की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाक अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि अफगान धड़ों में जल्द बातचीत का आगाज हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन और पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी हुई है। अभी ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हो गया। हमारे लिए 15 अमवात भी ज्यादा हैं। कल पाकिस्तान के अंदर 15 लोग जान बहक हुए कोरोना की वजह से। ये 15 भी ज्यादा है, ये भी अफसोसनाक है। ये कोई अब बात नहीं है कि हम जो है वो फतेह डिक्लेयर करके अब आराम से हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। लेकिन कहाँ 78,000 से ज्यादा और कहाँ 15 एक दिन के अंदर। वफाक के अंदर जो सिविलियन इदारे हैं, जो मिलिट्री की सपोर्ट उसको हासिल थी और सूबों ने किस तरीके से मिलकर इस पे काम किया इस वबा को के फैलाव को रोकने के लिए। मुल्क के नामवर माहिरीन तिब ने मुल्क भर में स्कूल खोलने की हिमायत कर दी। सच न्यूज के प्रोग्राम आज का सच में मेजबान नदीम हुसैन से बात करते हुए हेल्थ प्रोफेशनल्स का कहना था कि जहां बाकी सब कुछ खोल दिया है वहां स्कूल और कॉलेजेस भी खोल देना चाहिए। नौजवान नस्ल बेहतरीन कुव्वत मदाफियत रखती है। ताहिर शमसी साहब, स्कूलों को खोल दिया जाए? जी, खोल दिया जाए। डॉक्टर फरीदुन साहब। जी देखिए, कंसिडरिंग द डाटा आई विल बी ऑफ दैट ओपिनियन कि इनको खोल देना चाहिए। और दूसरा, ये साइंटिस्ट की जो बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस की टेस्टिंग किसने इजाद की है? डॉक्टरों ने इजाद की है। जी जमाल नासिर साहब। बिल्कुल खोलना चाहिए स्कूलों को। रजात बंगई साहब। जी बिल्कुल खोल देना चाहिए। तो दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के बाद रूस से अच्छी खबर आ गई। रूस कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। रूसी सदर के मुताबिक वैक्सीन को रूसी वजारत सेहत ने रजिस्टर्ड कर लिया है। तजुर्बाती मराहिल मुकम्मल होने पर वैक्सीन की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि मेरी बेटी उन अफराद में शामिल है जिन्हें सबसे पहले इस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया था। उन्होंने कहा कि रूस की तैयार की हुई वैक्सीन को रूसी वजारत सेहत ने रजिस्टर्ड करा लिया है। रूसी वैक्सीन के नताज इंतहाई हौसला अफजा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में मजीद कहा कि रूसी वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ कुव्वत मदाफियत बढ़ेगी। रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार अपनी वैक्सीन के तमाम तजुर्बाती मराहल मुकम्मल होने पर कल उसे लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। सितम्बर से बड़े पैमाने पर वैक्सीन की प्रोडक्शन का आगाज होगा, जबकि अक्टूबर से मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मसाजिद को इबादत के लिए खोला गया। रियासत की रिट के लिए रियासत अपना किरदार अदा करती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मुल्क में अहम किरदार है। उलमाए कराम की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान रवाबतो हुस्न तामुल के लाहे अमल के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मुख्तलिफ मसाइल पर किरदार काबिल तारीफ है। सबको साथ लेकर चलना है। रियासत अपना किरदार अदा कर रही है। उलमा की राय को हमने अहमियत दी थी। पूरी दुनिया कह रही थी कि मसाजिद को बंद करो। उलमा कराम की ख्वाहिश थी कि हम SOPs के जरिए से खुले रखते हैं। हुकूमत का फैसला था कि खुले रखे और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था पूरी दुनिया में जिसने सरकारी तौर पर SOPs के साथ मसाजिद को खोलने की इजाजत दी। रियासत अपना रिट हर सूरत में
हर कीमत पर हर हालत में बरकरार रखेगी। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किबला याज का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के सबसे बड़े मंसूबे सी पैक को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, जिसे सब ने मिलकर नाकाम किया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की आईनी फराइज़ मनसूबी में ये बात शामिल है कि मुआशरे की शिराज़ा बंदी के लिए तजावीज़ और लाया अमल तरतीब। आज की ये फिक्री नशिस्त इस जिम्मेदारी के एहसास का तसलसल है। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई और मुशावरत के नतीजे में पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल में मुआलिदीन की रेशा दबानियों से महफूज है। मसाले के दरमियान रवाबत और हुस्न तामल का लाहे अमल तय करने के लिए मुख्तलिफ तबका फ़िक्र मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने अपनी तजावीज़ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में पेश की। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। अब बात करेंगे जश्न आजादी की। तो शहर कायद में भी मातन वतन के यौम आजादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहरी एक जानिब तो सब्ज हिलाली परचमों समेत दूसरी जानिब सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं, तो मुल्क से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जज्बा भी सर चढ़कर बोलने लगा है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। खवातीन भी किसी से कम नहीं। पाकिस्तान के यौम आजादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए कराची में भी तैयारियां जारी हैं। शहर की सड़कों, गली मोहल्लों और चौराहों पर हर सू सब्ज हिलाली परचम नजर आने लगे हैं। शहर में जगह जगह जश्न आजादी के लिए खुसूसी स्टॉल सज गए हैं, जिन पर झंडियों के अलावा बैजेस, टोपियां, बैंड्स, चूड़ियां और सब्ज हिलाली परचम के रंगों में बच्चों के लिबास के अलावा दूसरी कई सजावटी अशिया दस्तयाब हैं। नौजवान, बच्चे, बड़े बूढ़ों के अलावा खवातीन भी मादरे वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए खरीदारी करती हुई नजर आती हैं। रुखसाना नामी इस खातून को ही देख लें, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। हमारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बहुत ही ज्यादा है। चाहे पाकिस्तान से बाहर भी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब यही कहते हैं कि इन हालात की वजह से आ नहीं पा रहे, लेकिन अपने पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाने का जो है ना जज्बा हमें तो मुयसर हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर सब आके देखें कि हमारे मुल्क में, हमारे कराची शहर में किस तरह से मनाया जाता है। खातून ने मिली नगमा गाकर भी मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें वक्त पड़े तो इसकी खातिर जान दे देंगे, जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे, हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। शहरी कहते हैं कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, इसलिए इसका यौम आजादी भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। लाहौर में जश्न आजादी करीब आते ही बाजारों में सब्ज हिलाली परचम और झंडियों की फरोख्त भी बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदे वकार हुसैन शादवान में लगे झंडे और झंडियों के स्टॉल्स पर मौजूद हैं। उनसे जश्न आजादी की तैयारियों के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वकार, बताइएगा कि लाहौर ये किस तरह से जश्न आजादी को मनाने के लिए तैयार हैं? बाजारों में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियों में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर भी जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बेपना रश देखा जा रहा है। लेकिन लाहौर के जो गली मोहल्ले हैं, इसके अलावा जितनी भी आम शारें हैं, उनके किनारे पर भी बकायदा तौर पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। वहाँ पर भी शहरियों का बेपना रश है और वो झंडियाँ, इसके अलावा जश्न आज़ादी से मुज़य्यन जितने भी मलबूसात हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। और मंचले नौजवान जो से हैं वो ज़्यादातर हमें टी शर्ट्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं शादमान के इलाके में मौजूद हूँ और शादमान में बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ वक्त गुजरने के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ खरीदारी के लिए आई हुई है। ज़्यादातर जो शहरी हैं वो यहाँ से सब्ज़ हिलाली परचम खरीद रहे हैं, इसके अलावा झंडियाँ भी खरीदी जा रही हैं। और शहरियों का ये कहना है कि वो माजी के मुकाबले में इस बार बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी मनाएंगे और अपने घरों की भरपूर अंदाज में सजावट करेंगे। मेरे पास इस वक्त खरीदार मौजूद हैं जो झंडे और झंडियाँ खरीदने के लिए आए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप भी बताइएगा कि जश्न आज़ादी के वाले से क्या कहना चाहेंगे? तैयारी आपकी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, हम 14 अगस्त वाला दिन जो है बड़े जोश खरोश से मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। और ये दिन जो हमारे लिए बस फ़ख्र है। और इस दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और मैं सब पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि आप भी आएँ
निकलें और जश्न आज़ादी मनाएं। जी, आपने सुना कि शहरियों को ये कहना है कि उनकी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं और जो रह गई हैं वो तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ फैमिलीज भी मौजूद हैं जो यहाँ खरीदारी के लिए आई हुई हैं। इसके अलावा आप स्टॉल में देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत चीज़ें हैं। इसके अलावा बच्चियों के लिए बाकायदा तौर पर चूड़ियाँ भी हैं। इसके अलावा जश्न आज़ादी के बड़े ही खूबसूरत सब्ज़ लाली परचम के जो बैजेस भी मौजूद हैं। हमारे पास बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी बेटा, आप भी बताइएगा क्या लेने के लिए आए हुए हैं आप? हम बस ये लेने के लिए आए हैं, ऐनके और साथ में झंडे। सही लाओ। और अब बात करें मकबूजा वादी की, तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की बर्बरियत का एक और बेहमाना अंदाज। पाकिस्तानी होने का झूठा इल्जाम लगाकर 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जालिम काबिज भारतीय फौज ने इन तीनों नौजवानों को कत्ल करने के बाद खुद ही इनकी तदफीन भी कर दी। भारत ने मासूम कश्मीरी खानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तानी होने का झूठा और मन घड़त इल्जाम लगाकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद कश्मीरियों के अहले खाना ने बताया कि 18 साला इब्रार खटाना, 21 साला इम्तियाज अहमद और 25 साला इब्रार अहमद 16 जुलाई को काम की तलाश में श्रीनगर जाने के लिए अपने घरों से निकले थे, जिसके बाद उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया। काबिज भारतीय फौज ने कहा था कि 3 नौजवान 18 जुलाई को झड़प के दौरान मारे गए हैं। जालिम काबिज भारतीय फौज ने इन तीनों नौजवानों को कत्ल करने के बाद खुद ही उनकी तदफीन भी कर दी थी। तीनों शहीद नौजवानों के अहले खाना ने शोहदा का DNA टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडन ने इंडिया से कश्मीरियों के हुकूक की बहाली का फिर मुतालबा कर दिया और उनका कहना था कि कश्मीर की सूरत हाल यकीनन काबिल तशवीश है और हमें इस पर गौर करने की भी जरूरत है। पाकिस्तान की कोशिश के बाद कश्मीरियों के हक में फिर दुनिया भर में आवाजें उठने लगी। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन ने मुस्लिम कम्युनिटी के एक सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा है कि मसला कश्मीर की वजह से लाखों लोग इस हाल में हैं कि उनके बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इस हाल में रखना यकीनन तशवीशनाक है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का हवाला दिया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि जब बुराई देखो तो उसको रोको। You're registering and turning out 1 million Muslim voters this November. It matters. Your voice is your vote. Your vote is your voice. Muslim Americans' voices matter to our communities, to our country, but we all know that your voice hasn't always gotten recognized or represented and or the recognition it deserves. लाइव सेमिनार में अमेरिका में मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर भी रोशनी डाली गई और जो बाइडन ने मौजूदा सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी तारीख का पहला टेलीपोर्ट ब्रॉडकास्ट लाइसेंस जारी कर दिया गया। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने लाइसेंस टेलीनेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव मेहदी रजा को दिया। पाकिस्तानी तारीख का पहला टेलीपोर्ट ब्रॉडकास्ट लाइसेंस जारी करने की तकरीब पेमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई। इस मौके पर चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने लाइसेंस टेलीनेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव मेहदी रजा को दिया। अपने खिताब में चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने टेलीपोर्ट लाइसेंस की अहमियत को उजागर करते हुए बताया कि यह आज के दौर की अहम जरूरत है, जिससे न सिर्फ मकामी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा बल्कि पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी की बचत भी मुमकिन हो सकेगी। चेयरमैन पेमरा ने उम्मीद जाहिर की कि टेलीनेस्ट अपनी तकनीकी महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में वीडियो प्रोसेसिंग की एक नई तारीख रकम करेगा। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी की शहर शहर में पजीराई हो रही है। शहरी कहते हैं कि इस काविश से सफेद पोश अफराद का भरम रह जाता है। नेकी की टोकरी जो अल्लाह शुरू कर रखा है ये बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको बहुत उनका अजर देगा और उनको कामयाबी अल्लाह अता फरमाएगा। इनमें हम सबको मिलजुल के हिस्सा देना है। सच टीवी ने जो मुहिम शुरू की है नेकी की टोकरी, ये काबिल तारीफ है और जितनी भी आवाम है यहाँ के लोग हैं इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि जो गरीब आवाम है वो इससे फ़ायदा उठा सके। सच टीवी की तरफ से नेकी की टोकरी का जो सिस्टम किया गया ये काबिल तारीफ है। इसमें सफ़ेद पोश इंसान की जो मदद होती है और हम इस चीज़ में सच न्यूज़ वालों को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। सच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा न्यूजीलैंड की तस्दीक कर दी। दोनों टीमों के दरमियान दिसंबर में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।
نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق کورونا وائرس کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ سیریز ہوں گی، جن میں پاکستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کی سیریز شامل ہیں۔ چیف ایگزیکٹو نیوزی لینڈ کرکٹ ڈیوڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ دورہ کرنے والی ٹیمز کی آئسولیشن کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک تمام سیریز یقینی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا اور بنگلہ دیش نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ نیوزی لینڈ میں اس سیزن میں 47 روز کی انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی۔ تمام تفصیلات طے ہونے پر سیریز کے شیڈیول کا اعلان ہوگا۔ کراچی میں معروف صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے سید عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سندھ کی دھرتی صوفیہ کرام کی سرزمین اور سندھ بابا اسلام کہلاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ناصر حسین شاہ نے سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے عرس کے موقع پر مزار مقدس کی زیارت کے موقع پر کیا۔ سندھ کی دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اولیاء کرام نے اس کو اپنا مسکن بنایا۔ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں آ کر معاش حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر علماء کرام کے ہمراہ ناصر حسین شاہ نے فاتحہ خوانی کی۔ سندھ حکومت نے تمام مکاتب فکر مسالک مذاہب کے پیروکاروں کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد اور بااختیار سمجھتی ہے اور ہر انسان کی عزت و احترام کرتی ہے۔ ناصر حسین شاہ نے سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو خراج عقیدت پیش کیا اور آپ کی ذات مبارک راشد و ہدایت کا وہ چراغ ہے جس سے لوگ فیض پا کر بے شمار روحانیت اور انسانیت کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا کے پیش نظر SOPs پر عمل درآمد جاری رکھیں اور حاضری کے موقع پر ملک کی استحکام و ترقی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ شاہد اجاز، سچ TV کراچی۔ ابھی ایک بریک اور حاضر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ہی دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔